Hello, dear aspirants. I am Pratiksha Chauhan, your educator and mentor on Arpita Sharma classes, the platform where you get quality lectures for UPSC CSC preparation for free. We are going to cover environment and ecology based current affairs topics in an easy manner today. Before we start, here is a small announcement for you which is going to change the way you prepare for UPSC. New UPSC CSC GS batches for UPSC CSC aspirants starting from 12th February 2021. Get your subscription now and get 10% instant discount by using code SHARMA20. Top and Academy Educator will cover the important concepts for UPSC CSC prelims, and these courses will be helpful for aspirants preparing for UPSC CSC exams. UPSC CSC aspirants at any stage of their preparation will be benefit from these courses. The courses will be covered in bilingual Hindi and English. Do not miss this opportunity. Enroll now. Link is given below in the description box. Subscribe now. So today's topics are ban on pet coke, landslide warning system, disaster proofing of telecommunication. So let us start with the topics. Today's first topic is ban on pet coke. Why in news? क्यों ये न्यूज में है? क्योंकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने बैन कर दिया है यूज ऑफ इंपोर्टेड पेट कोक के लिए. ओके तो पेट कोक कहाँ कैसे यूज होता है? एज अ फ्यूल यूज होता है. ओके द यूज ऑफ पेट कोक जो होता है कहाँ कहाँ अलाउड होता है? जैसे सीमेंट में है, लाइम क्लिन में है, कैल्शियम कार्बाइड में है, गैसिफिकेशन इंडस्ट्रीज में यूज होता है. गैसिफिकेशन इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है? व्हेन यूज्ड एज अ फीड स्टॉक or in the manufacturing process on actual user condition. So this is in news. अब जो बैन ऑन पेट कोक है उसके कुछ से जुड़े कुछ की फैक्ट्स जानते हैं. जैसे इंडिया जो है वो वर्ल्ड बिगेस्ट कंज्यूमर है पेट कोक का और इट गेट्स ओवर हाफ ऑफ इट्स annual pet coke imports of around 27 million tons from United States. 27 billion tons यूनाइटेड स्टेट्स से मिलता है इंडिया को पेट कोक का. और लोकल प्रोड्यूसर्स जो हैं जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, रिलायंस इंडस्ट्री है और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है. अब ये पेट कोक जो होता है एक डार्क सॉलिड कार्बन मटेरियल होता है जो कि सीमेंट कंपनीज में मोस्टली यूज होता है इंडिया में, जो कि फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द कंट्रीज पेट कोक uses of pet coke in energy hungry India recently has came under scrutiny due to rising pollution levels in major cities. Recently अभी जो पेट कोक का है वो एनर्जी हंग्री इंडिया के अंडर में आया कि उसकी स्क्रूटनी हुई कि ये इसकी वजह से जो पोल्यूशन में राइज हो रहा था कुछ मेजर सिटीज में. Let us understand what is pet coke. Pet coke is also known as petroleum coke, which is a byproduct of the oil refining process. Categorized as bottom of the burial fuel as it is a residual waste material which is obtained after refining coal to extract lighter fuels like petrol. कोल को रिफाइन करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइटर फ्यूल्स में बनाया जाता है जैसे पेट्रोल को. ओके यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कार्बन फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज होता है, कार्बन के लिए यूज होता है कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में. ओके It is abundantly used in India in several manufacturing industries such as cement, steel, textile as it is significantly cheaper than coal, has high calorific value and easier to transport and store. ये बेसिकली कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है जैसे सीमेंट, स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, और ये कोल से भी ज़्यादा सस्ता या चीपर होता है और इसकी हाई कैलोरिफिक वैल्यू होती है और ये इजी होता है ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने के लिए. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पेट कोक प्रोड्यूस्ड. ओके 2 काइंड होते हैं पेट कोक के जो कि प्रोड्यूस होते हैं. जो ये पहला है फ्यूल ग्रेड पेट कोक दैट इज 80% है और calcium pet coke 20% during oil refining. So let us discuss about environment and health risk of pet coke. It is much more potent pollutant than coal and causes greater harm to the environment and health. मतलब ये कोल से भी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ाता है और ये हार्मफुल होता है environment और health दोनों के लिए. और it contains whopping 74,000 ppm of sulfur content. मतलब ये 74,000 ppm सल्फर कंटेन करता है जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज होकर एमिशंस
बनता है विच इज मच हायर देन वेहिकुलर एमिशंस, जो कि मोर हायर मतलब ज़्यादा हायर होता है वेहिकुलर एमिशन से. और it is also source of fine dust which can get through filter process of human airway and lodge in lungs which can cause serious health problems. ये एक source of fine dust है जिसके कारण serious health problems हो सकती हैं. और pet coke also releases other toxic gases after burning such as nitrous oxide, mercury, arsenic, chromium, nickel, hydrogen chloride, greenhouse gases which contribute to global warming. So it is about pet coke. Let us understand something about Directorate General of Foreign Trade. It is an agency of Union Ministry of Commerce and Industry. Established कब हुई थी 1991 में. Before 1991, Directorate General of Foreign Trade was known as the Chief Controller of Imports and Exports. So what is the earlier name of Directorate General of Foreign Trade? That is Chief Controller of Imports and Exports. अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में. और 38 रीजनल ऑफिस है ऑल ओवर द कंट्री. Headed by Directorate General of Foreign Trade, the Appointment Committee of Cabinet appoints the Directorate General of Foreign Trade. Okay. Now let us understand the functions of Directorate General of Foreign Trade. Responsible for implementing the country's foreign trade policy. ये country की foreign trade policy को implement करता है. Implement the foreign trade policy or the exempt export or import policy of the government. Its main mandate is to promote exports from India. इसका main aim क्या है कि export को promote करे India से. Okay. और फॉर्मुलेट गाइडलाइंस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टर्स. गाइडलाइंस बनाता है इंडियन एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स के लिए. और इट हैज़ द अथॉरिटी टू प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट एंड रेगुलेट इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स. ये इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को रोक सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है. इसके पास पूरी ये अथॉरिटी है. अब है प्रमोटिंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड हर नेबरिंग कंट्रीज. ये ट्रेड को प्रमोट करता है जो कि इंडिया और कुछ और अलग कंट्री से हो. अब हैंडलिंग क्वालिटी कंप्लेंट्स ऑफ द फॉरेन बायर्स ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स. सो इट्स अ फंक्शंस ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. So the next topic is landslide warning system. Why this is news? Because a real-time landslide warning system has been set up in the Sikkim dazzling belt of northeastern Himalayas, which is highly vulnerable to landslide. एक रियल लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम सेटअप किया गया है सिक्किम दार्जिलिंग बेल्ट जो कि नॉर्दर्न ईस्टर्न हिमालयस में है, जो कि हाईली वनरेबल होती है लैंडस्लाइड्स के लिए. और ये सिस्टम जो है वो अलर्ट इशू करेगा, एडवांस अलर्ट देगा, मतलब एक्स्ट्रा पहले से ही अलर्ट दे देगा कि जिससे लाइफ सेव हो सके और प्रॉपर्टी जो लॉसेस होते हैं उनसे बचा जा सके. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम. ये होता क्या है? ओके, द वार्निंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवर 200 सेंसर्स. ये जो सिस्टम है वो 200 सेंसर्स कंसिस्ट करता है जिससे मेजर किया जा सकता है जियोफिजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर्स जैसे रेनफॉल, पोर प्रेशर, सिस्मिक एक्टिविटीज. ओके, it has been set up on slopes spread over 150 acre at Chandramali village in Gangottam. ओके, ये 150 एकर्स से स्प्रेड हुआ है जो कि चंद्रमली विलेज में है, गंगोटक में है ये चंद्रमली विलेज. ओके, अब इट विल मॉनिटर अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया विच हैज सीन लैंडस्लाइड्स इन द पास्ट. ये मॉनिटर करेगा जो कि हाईली पॉपुलेटेड एरिया है जो कि पास्ट में लैंडस्लाइड से देख चुके हैं, बीत चुके हैं. ओके, और द सिस्टम इज कैपेबल ऑफ वार्निंग अबाउट 24 इन एडवांस. जो सिस्टम है वो 24 आवर्स पहले ही एडवांस में वार्निंग दे देगा. पीपल कुड बी सेफली इवैक्यूएटेड इन दिस पीरियड. ओके, लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय. अब ये लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम जो है वो किसके द्वारा डिप्लॉयड किया गया है? दैट इज रिसर्चर्स ऑफ केरला बेस्ड अमृता यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद द सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. और ये जो प्रोजेक्ट है वो पार्शली फंडेड बाय है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. अब ये लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? ये कलेक्ट करता है रियल टाइम डाटा और कंटिन्यूस डाटा जो कि फ्रॉम कहां से कलेक्ट होते हैं? सेंसर से. और जो ये
डाटा है वो बेसिक एनालिसिस परफॉर्म करता है कहाँ पे, जो कि लोकली कंट्रोल सेंटर्स एस्टैब्लिश हुए हैं, लोकल में जो एस्टैब्लिश सेंटर्स हुए हैं, ओके, और एंड रिलीज द सेम टू द डेटा मैनेजमेंट सेंटर एट अमृता विश्वा विद्यापीठम इन केरला's कोलम डिस्ट्रिक्ट, ओके. The researcher used this data to categorize geological and hydrological factors. जो researcher हैं वो इस data को categorize करते हैं geological और hydrological factors में, और response of the hill with respect to dynamic and real time meteorological variation to develop a warning. Okay. This multi-level warning system will help disaster management authorities to take steps to mitigate and manage potential landslide threats in proactive and effective manner. ये जो system है वो multi-level warning system है जो कि help करता है disaster management authority को एक परफेक्ट स्टेप लेने के लिए, जिससे जो लैंडस्लाइड थ्रेट है वो इफेक्टिव मैनर में सॉल्व हो सके. So the next topic is disaster proofing of telecommunication. Why is this in news? क्यों है ये न्यूज में? क्योंकि there were major failures in communication services during the recent Kerala flood. केरला फ्लड हुआ था जो, उसकी की वजह से कुछ फेलियर्स हुए थे कम्युनिकेशन सर्विसेज में. दैट्स वाई द न्यूज इट हाईलाइट्स द लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑन द पार्ट ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज. What is the importance of communication? Importance क्या होती है communication की, कि during a crisis situation well coordinated communication network is needed to save from the disaster risk. एक अच्छा communication network चाहिए होता है crisis situation में, जब crisis आती है, जिससे जो disaster risk है वो save हो सके, ओके, बस बचा जा सके उन सब चीज़ों से. अब जैसे such an infrastructure functioning during a crisis can significantly enhance the flexibility of communities exposed to risk. Okay. Let us discuss कि ये जो communication problem होती है, disaster proofing of telecommunication होता है, इससे कैसे डील किया जा सकता है, how to deal with it. पहला है location of equipment. Location कैसी होनी चाहिए equipment की, जैसे पहला optimum location that is least exposed to risk can reduce damage. ऐसी location choose करें जो कि risk जिसमें ज़्यादा ना हो और कम से कम damage हो. अब it can also make telecommunication installation less susceptible to natural disaster. Example, equipment should be installed in buildings in higher locations where the risk of flooding is reduced. Equipment है वो हायर लोकेशन पे इंस्टॉल हो बिल्डिंग्स में, जिससे जो रिस्क है फ्लडिंग का वो रिड्यूस हो सके या कम हो सके. दूसरा है ऑटोनॉमस पावर सप्लाई. ये बैकबोन होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का. Besides, there should be a sufficient fuel for backup generators as power outage can be prolonged. Sufficient fuel होना चाहिए जब जरूरत हो, जिससे बैकअप पे जनरेटर्स ऑन हो सके और पावर जो है प्रॉपरली सप्लाई हो सके. और third one is data service. That is, servers should be geographically dispersed and network elements can be based on cloud platform. Okay. अब डिजास्टर प्रूफिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के से रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस भी हैं, जैसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है जो कि टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट ब्यूरो हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग गाइडलाइंस टू द कंट्रीज टू मिटिगेट द डिजास्टर. टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट ब्यूरो ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जिससे डिजास्टर से बचा जा सके या मिटिगेट हुआ जा सके. पहला है इंश्योरिंग डिजास्टर रिडक्शंस strategies as part of the communication development plans. जो ऐसे इंश्योर किया जा सके, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जा सके जिससे डिजास्टर है वो कम से कम हो सके और कम्युनिकेशन जिससे है और अच्छा हो सके ड्यूरिंग डिजास्टर. हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्रीज विद इमरजेंसी टेलीकम्युनिकेशन ड्यूरिंग डिजास्टर्स. डेवलपिंग कंट्रीज में हेल्प हो सके कि इमरजेंसी के वक्त टेलीकम्युनिकेशंस अच्छे हो जब डिजास्टर आया हो. ओके. Up. Working with developing countries and the private sector to rebuild or develop communication system that will bring the benefit of the information society to all. So it is all about today's topics. Hope you understand. Thank you.